Bismillahirrahmanirrahim. This is our part 3 of the series of error analysis, and lecture is lecture number 7. So, in this lecture, we'll discuss finite digit arithmetic, and the purpose of this discussion is to understand the computation which has been used by the machine. For example, computer, uh, your calculator, your mobile. So we'll see how these arithmetic works in these machines. So what do we mean by finite digit arithmetic? By arithmetic we means addition, multiplication, division, and subtraction. And with the addition of finite digit, so we have already studied the fixed point numbers. Fixed point numbers we meant earlier that for example, if we have a real number x, then if we have to write this number or represent the number in machines, we'll use fl of x, the floating point of x or fixed point of x. It means we have to chop around the real number x up to a certain digits so that we can have a fixed point number in the end. So floating point of x means this is a fixed point number, and it is approximately equal to a certain real number. So this is not the exact number. So then the calculation performed by these floating point numbers will not be exact. For example, if we have a number y and we represent it using fl of y, then x plus y will give you an exact answer. However, floating point of x, and when it will be added by floating point of y, so this will give an approximate answer. And note that the addition performed, for example, you might have seen that when you have add any two real numbers, so there is a chance that the resultant number might be greater in number of digits as compared to the earlier numbers. Sometimes when we have to add 6 and 8, the addition will be of two-digit number. We have added one-digit number and the result will be of two-digit number. So there is a possibility that when we add two uh, n-digit numbers, the result might be n plus one digit number. So again, if our machine do not afford a number greater than n, then we have to chop or round off again to a certain digit fl. So we'll see these details in this discussion. Uh, we try to understand that the floating point arithmetic and the exact arithmetic might give us different answers, and there are chances that there are some errors in the calculations when using the fixed point numbers. वापस आते हैं हम अपने इस पे टॉपिक पे. यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि इन एडिशन टू इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, ये इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है कि एक्स को हम एक्यूरेटली कंप्यूटर में या मशीन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. So in addition to inaccurate representation of numbers, the arithmetic performed in computer is not exact. ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट होगा. यही बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी. इसकी ज़्यादा डिटेल जो है आगे चल के आप कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में भी शायद आप उसको पढ़ो. लेकिन यहाँ तक हम जो मैथमेटिक्स के हवाले से हम इसको यहीं पे तक लेके चलेंगे. अब इसी को हम फर्दर एनालाइज करते हैं. Assume that the floating point representation fl of x and fl of y are given for the real number x and y, just like I have mentioned here. And the symbols, this plus show the machine addition. यहाँ पे हम एक एग्जांपल साथ साथ लेके चल लेते हैं. ये नंबर हमारे पास x है, x is equal to 5/7 and y is equal to 1/3. ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं हमारे पास.
जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मैं प्लस का साइन यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा 5/7 प्लस 1/3 द एलसीएम इज 21 is a 15 and 7, so the answer is 22/21. So this is the exact answer. However, when this computation has been computed by a machine, the sign we denote it like plus within a circle. तो इस साइन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास मशीन एडिशन है, ठीक है, मशीन एडिशन। Similarly, machine subtraction, machine multiplication, and machine division. And what do we mean by these calculations? For example, if we have to add two numbers through a machine, so x machine addition y is equal to, we first take float of x, will chop or round our real number x up to the capacity of the machine, and then we'll again take FL of y. हम y को भी उस डिजिट तक करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कैलकुलेटर आपका 10 डिजिट अगर स्टोर कर सकता है, तो फ्लोट जो है वो x को भी 10 डिजिट में कर देगा, y को भी 10 डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन दे ऐड द फिक्स पॉइंट नंबर्स, जो रिजल्टेड नंबर्स आएंगे हमारे पास, FL of x और FL of y, इन दोनों को ऐड करेंगे, जिस तरह हम सिंपल ये ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद वी हैव टू अप्लाई अगेन फ्लोट। ये फ्लोट दोबारा क्या करेगा कि समटाइम, जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 + 8 को ऐड किया तो 14 आ गया, 2 डिजिट नंबर आ गए। तो यहाँ पे भी चांसेस है कि ये 10 डिजिट नंबर को ऐड करने से 11 डिजिट बन जाए, तो हम दोबारा से उस पर फ्लोट अप्लाई करके आंसर को अगेन 10 डिजिट में लेकर आ जाएंगे। तो यही बात हम यहाँ पे बाकी अरिथमेटिक में भी यूज़ कर लेंगे। ओके, अब अगर यहाँ पे मैं एडिशन करना चाहूँ x machine addition y, so I have to write float of x plus float of y. x मेरे पास क्या है, x मेरे पास था जी 1/3। अब 1/3 यहाँ पे देखिए लिखा है 5 डिजिट चॉपिंग। अब जो भी मैंने परफॉर्म करना है, x is equal to 1/3 and 1/3 is equal to 1/3 is equal to 0.333, ठीक है। 4 डिजिट हो गए और ये 6 डिजिट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि मैं 5 डिजिट तक चॉप कर सकूँ। जब मैं 5 डिजिट चॉप करूँगा तो आखिरी डिजिट खत्म हो जाएगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये इसका यानी 1/3 ये तो कंटिन्यूस है ना, लेकिन जब मैं इसका FL of x लूँगा तो मुझे 5 डिजिट ओनली लिखने पड़ेंगे, 3 3 3 3 एंड 3। अच्छा, तो ये मेरे पास फ्लोट ऑफ x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 3s आ गए पॉइंट के बाद, ठीक है। सिमिलरली y मेरे पास, मैं गलत कर दी महल में, ये जो मेरे पास वैल्यू है ये वैल्यू है बेसिकली y की, ठीक है। ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू थी हमारे पास 5/7, तो 5/7 इट इज इक्वल टू 0.7142857 2857 था, तो मैंने इसको 6 कर दिया, भी इतना भी राउंड कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे राउंड करने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ पूरे का पूरे। ये हमारे पास होगा 2857। अब मुझे डिजिट्स चाहिए 5, 1 2 3 4 एंड 5, और बाकी डिजिट्स मैंने क्या करने, चॉप करने। तो बाकी डिजिट चॉप करने के बाद मेरे पास FL of x जो बनेगा वो आएगा 0.71428। तो ये आ गया जी 0.71428 प्लस 0.3333 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं इनको सिंपल ऐड कर लेता हूँ। अब आपने पूरे नंबर्स को ऐड नहीं करना, कैलकुलेटर में अगर आप ऐड करेंगे तो पूरे नंबर्स ऐड हो जाएंगे। हमने इनको सबसे पहले चॉप किया, चॉप करने के बाद हम इनको ऐड करते हैं। तो 0.714
28 plus 0.5 times 3. So the answer is float of 0.104761 क्रॉस 10 टू पावर 1। अच्छा, इसका जो आंसर आया इन दोनों को ऐड करने के बाद है वो 1.04761 आया है। अब मैंने इसको लिखा है नॉर्मलाइज फॉर्म में, तो क्रॉस 10 टू पावर 1 आ गया। अब अगेन मुझे नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखने के बाद मुझे इस पर दोबारा फ्लोट अप्लाई करना है, तो 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट चाहिए, तो 1 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास आ गया 0.1047 क्रॉस 10 टू पावर 1। अगर मैं इसको सिंपल उस तरह लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1.0476। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर x प्लस वाई। यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ ताकि हम बाकी सारी कैलकुलेशन भी इसमें कर लें। x y तो हमारे पास सेम है ना, सॉरी, तो यहाँ पे हमें ऑपरेशन सी लिखने पड़ेंगे। x प्लस वाई और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आएगा। पहला ओरिजिनल ले लेते हैं हम x प्लस वाई, दूसरा हमने अप्रॉक्सीमेट यानी मशीन एडिशन ले लिया। फिर हम इसको बोल दिया लेट से p इज रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्ट आंसर एंड p स्टार रिप्रेजेंटिंग अप्रॉक्सीमेट आंसर। तो p माइनस ये एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आ जाएगी, और इसी तरह हम रिलेटिव एरर भी फाइंड कर लेंगे, p माइनस p स्टेरिक डिवाइड बाई p। अच्छा, अब सबसे पहले x और 5 x प्लस वाई हमने फाइंड किया, तो 22/21 इसका आंसर आया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 22/21। और जब हमने इसको मशीन अरिथमेटिक्स से किया अप टू 5 डिजिट चॉपिंग के साथ, तो ये आंसर आ गया जी 0.10476 क्रॉस 10 टू पावर 1। अब जब मैं इसको एरर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो ये आएगा जी 22, एग्जैक्टली मैं ऐसे लिख रहा हूँ 22/21 माइनस 1.0476। तो ये मेरे पास आंसर आया, एब्सोल्यूट जो एरर है वो आई 1.9। अच्छा, अगर मैं इसको एब्सोल्यूट एरर है ना, मैं इसको भी बुक को फॉलो करते हैं, हम इसको भी नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा जी 0.190, आगे 4 आ रहा था तो हमने राउंड अप नहीं किया। अब अच्छा, ये जो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो रही है ना 5 डिजिट चॉपिंग वाली, वो सिर्फ और सिर्फ पी स्टेरिक पे है। अब आपने एरर पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एरर पे आप 0.190 भी तक लिख सकते हो, 19 भी लिख सकते हो, ताकि हमें पता चल जाए एटलीस्ट कि एरर कितनी आ रही है। 10 टू पावर माइनस, जब हम -4 हो जाएगा क्योंकि हमने इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखा है। अगर 1.90 लिखते तो फिर हमारे पास 10 टू पावर -5 होता। अगेन नाउ वी हैव टू डिवाइड विथ p, तो 22/21। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.1818 आ रहा है। ठीक है, ये बनेगा जब इसमें हम करेंगे 1.8 आ रहा है ना, तो 1818 आगे आ रहा था, तो 1 के बाद 8 आ रहा था, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ 10 टू पावर -5। तो ये हमारे पास अगेन -4 की एरर बनेगी जब हम नॉर्मलाइज फॉर्म में करेंगे। तो बेटा अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे ये x प्लस वाई फाइंड किया है, तो सिमिलरली आप लोग फाइंड करें कि x माइनस वाई क्या, x माइनस क्या होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई सिंपल करें पहले, फिर x माइनस वाई मशीन एडिशन करें। इसी तरह यहाँ पे इनकी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, यहाँ पे इसकी रिलेटिव एरर आ जाएगी। और अगेन फिर आपने x नेक्स्ट स्टेज पे x मल्टीप्लिकेशन y, x
मल्टीप्लिकेशन वाई। अच्छा ये सिंपल आएगा इधर ना, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये मशीन मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह आपने चारों और डिवीजन वाला भी आपने परफॉर्म करना है। इनके आंसर्स जो है ये आप बुक से मैच कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि x हमारे पास 5/7 है, y 1/3 है, u की ये वैल्यू हमें दी हुई है, v की वैल्यू हमें ये दी हुई है, w की वैल्यू भी हमें दी हुई है, और हमारे पास सिमिलर वही काम करना है कि हमने 5 डिजिट चॉपिंग करनी है। ठीक है, तो अब इसमें जब हम फाइंड करेंगे तो आपने टेबल जो इसका बनाना होगा, ये मैं आपको, आपका एक तरह से होमवर्क भी है नोट्स के साथ ना, x माइनस यू, इसमें सबसे पहले हम इसके हेडर ले लेते हैं ऑपरेशंस। सो नेक्स्ट इसमें आगे ये रिजल्ट आ जाएगा, ये सारा हम एक तरह का टेबल जैसे बुक में बनाया हुआ है। तो ये सेकंड में हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया होगा वो हमारे पास आ जाएगा, और फिर इसके बाद एक्चुअल आंसर जो आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आ रही है, और इधर एंड पे रिलेटिव एरर आ जाएगी। तो मेन आपके पास है x माइनस, जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है x माइनस यू करना है। अब x माइनस यू करेंगे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में एग्जैक्ट आपके पास आएगा 0.34714, और जो ये मशीन का रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.3000, ये 4 जीरोस क्रॉस 10⁻⁻⁴ आएगा हमारे पास। एब्सोल्यूट एरर जो आएगी यहाँ पे वो आएगी 0.471 क्रॉस 10⁻⁵, और रिलेटिव एरर आएगी 0.136। तो ये आप लोग यहाँ पे परफॉर्म करके भी देख सकते हो। इसी तरह आपने जो कैलकुलेशन करनी है x माइनस यू और डिवाइडेड बाई w, ठीक है। सिमिलरली x माइनस u machine subtraction and multiplication by v, and finally u plus v। अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो 5/7 जो है इसकी वैल्यू तो आ रही है 0.71425 ये आ रही थी, और जो y है वो है 0.5 डिजिट तक ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे, x को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे u के साथ, तो ये देखे काफ़ी मिलते जुलते हैं। देखो 7 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, आगे एंड पे 1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ रही होगी वो तो बहुत ज़्यादा आ रही होगी, लेकिन रिलेटिव एरर माइट भी उतनी ज़्यादा ना आ रही हो। ये आप कैलकुलेशन इसका आप लोग करके चेक कीजिएगा कि यहाँ पे मतलब क्या इशू हो सकता है हमारे पास। और ये आपकी बुक में जो है ना ये एग्जांपल नंबर 4 है यहाँ पे। अच्छा अब x माइनस जो सेकंड पार्ट है x माइनस यू, जब आप ये परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले x माइनस यू आपने करना है, यानी आपने फ्लोट ऑफ x लेना होगा, फिर फ्लोट ऑफ u लेना होगा, उसके बाद इनको सिंपल माइनस करना है, माइनस करने के बाद फिर आपने लेना होगा फ्लोट ऑफ इस सारे का फ्लोट। अब जब आपने ये ले लिया तो इसके बाद आपने इसको डिवाइड बाय w करना है। तो लेट से ये जो रिजल्ट मेरे पास आया है इसको मैं कह देता हूँ a, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, a डिवाइडेड बाय w विद मशीन डिवीजन। तो यहाँ पे भी वही होगा, फ्लोट ऑफ a लेना होगा और फ्लोट ऑफ w, देन वी विल डिवाइड एज वी डिवाइडेड सिंपली, और इसके बाद जो आंसर आएगा उसका आप फ्लोट लेंगे। तो ये आपके पास टोटल आंसर यहाँ पे
इस तरह से आएगा। अब फ्लोट ऑफ एक्स जब हम लेंगे 5/7 का, तो ये हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ जाएगा 0.71425 माइनस हम कर रहे हैं, और u का जब फ्लोट लेंगे हम तो u 6 डिजिट नंबर है, तो हमें 5 डिजिट चाहिए, तो ये एग्जैक्टली हमारे पास 0 पॉइंट, यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक ये हो गई थी कि जो x की वैल्यू है वो एंड में थोड़ी चेंज आ रही है। मैंने पहले समझा कि ये वैल्यू उन्होंने लिखी हुई है, मैं यही वाली वैल्यू कॉपी कर रहा था। तो ये बेसिकली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/7 डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है x इज इक्वल टू 0.714285। अब 3 और 3 6 डिजिट ले लिए, आगे 7 भी लिख लेते हैं। चलें, चॉप करना है, इसमें कोई इशू हमारे पास ऐसा होगा नहीं यहाँ पे। अच्छा, इस केस में हमारे पास फ्लोट ऑफ x जो होगा x माइनस u फ्लोट एंड फ्लोट ऑफ x, अब ये हो जाएगा 0.714, और आगे एंड पे क्या आ रहा है 2 and 8, ये 5 डिजिट तक हमने चॉप कर दिया, फ्लोट फाइंड कर लिया हमने। इसी तरह जब हम u माइनस करेंगे तो वो 71425 हो जाएगा, 0.71425। इसको माइनस किया हमने सिंपल, तो ये हो जाएगा जी 0.7 माइनस 7, ये भी 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 की जगह पे 0 हो गया, और 8 माइनस 5 इज 3। ये बात हम आगे अब डिस्कस करेंगे, इस बात को आगे लेके चलेंगे कि ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, पहले हमारे पास 5 थे, लेकिन इस सब्ट्रैक्शन की वजह से तो यहाँ पे हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डिजिट अब रह गया है, तो लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट की वजह से एरर हमारी इंक्रीज करती है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम 5 डिजिट्स यहाँ पे हम लिखना चाह रहे होंगे, तो अब 5 डिजिट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं सबसे पहले इसको 1 2 3 4 एंड 5। हमें पता है कि 3 के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली 3 के बाद ये जीरोज हैं, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गए। क्रॉस नंबर स्मॉल था, इसको हमने बड़ा किया, तो 1 2 3 4 के बाद आ गया, तो 10 टू पावर ये हमारे पास 0.3 क्रॉस 10 टू पावर -4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इस आंसर को अगर हम कंपेयर करें अपने एग्जैक्ट से, तो x माइनस यू जो है वो हमारे पास क्या होगा, x माइनस यू में हमारे पास जो मुकम्मल नंबर आ रहा है उसको जब हम माइनस करते हैं -0.714251 से, तो मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3.4714 क्रॉस 10 टू पावर -5 आ रहा है। अब इसको अगर मैं लिखूँ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, तो 34714 क्रॉस 10 टू पावर -4, ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। अब ये यहाँ पे ना 4 के बाद 2 8 और कुछ इस तरह के डिजिट्स आ रहे थे, तो हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो की हैं उसमें ये हर एक का फ्लोट नहीं लिया हुआ, एंड में हमने इसको 5 डिजिट करके लिख दिया। अब अगर इसी नंबर को हम इसकी एब्सोल्यूट एरर फाइंड करें, यानी इसको मैं कह दूं पी स्टेरिक, और ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं बोल देता हूँ पी, तो एब्सोल्यूट एरर क्या आती है देखें इसकी। ये दोनों 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स नंबर हैं, इनको जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास डेफिनेटली ये जो जीरोज़ हैं ये नंबर दोनों नेग्लिजिबली स्मॉल हो गए। तो नेग्लिजिबली स्मॉल होने की वजह से यहाँ पे एरर हमारे पास इंक्रीज करेगी। अब 3 और 3 ये दोनों बराबर हैं, इस वजह से ये 4 डिजिट ये और 1 डिजिट ये हम यहाँ पे ले लेंगे, तो -5 हो जाएगा। ये आंसर आएगा 0.471 क्रॉस 10 टू पावर -5। अब अगर इसी रिजल्ट को हम यूज़ करते हैं
यहाँ पे और रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं। तो रिलेटिव एरर जो है वो क्या होगा, हमें p माइनस पी स्टेरिक ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, इसको हम p से डिवाइड कर देते हैं। तो 0.471 क्रॉस 10⁻⁵ जो है इसको हमने डिवाइड करना है p से, और p हमारे पास है जी 0.3471 4 क्रॉस 10⁻⁴। अब देखिए ये जो वेट था -4 वाला, ये -4 से कैंसिल हो रहा है और हमारे पास रिलेटिव एरर अब बहुत बड़ी आएगी। तो जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 0.13 एंड समथिंग। तो कहाँ पे देखें एब्सोल्यूट एरर हमारे पास 10⁻⁵ की आ रही थी, और जो हमें बताया जा रहा था कि हमारे पास बहुत अच्छी एरर नज़र आ रही है, लेकिन वो एरर इतनी अच्छी नहीं थी। इस रिलेटिव एरर ने हमें बता दिया कि आपके जो नंबर थे वो बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल थे और हो भी सब्ट्रैक्ट रहे थे, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपके पास यहाँ पे एरर जो है वो काफ़ी बड़ी आ रही है। 10⁻⁵ जो एरर है उससे बहुत बड़ी एरर यहाँ पे आ रही है। तो इसकी वजह हम आगे चल के देखते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि इसकी सब्ट्रैक्शन की वजह से लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए, जिनकी वजह से एरर हमारी इंक्रीज़ कर गई है। तो आपने बाकी जो कैलकुलेशंस हैं ये सारी की सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे परफॉर्म करनी है, इस टेबल को फिल करना है। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर प्रोड्यूसिंग कैलकुलेशन इन्वॉल्व द कैंसिलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ड्यू टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ नियरली इक्वल नंबर्स। जैसे अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास नंबर्स थे वो नियरली इक्वल थे, कि दोनों में 4 जीरोस आ रहे थे पॉइंट के बाद, फिर आगे 3 आ रहा था और दूसरे में 3 के बाद 4 आ रहा था, तो नंबर इक्वल्स थे, नियरली इक्वल थे। तो ये बता रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर प्रोड्यूसिंग कैलकुलेशंस, यानी वो कैलकुलेशंस जिनमें एरर प्रोड्यूस होती है, दे इन्वॉल्व्स द कैंसिलेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। उनमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है ना वो सब्ट्रैक्शन में कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एरर्स इंक्रीज करती है। सपोज वी हैव टू नियरली इक्वल नंबर्स x एंड y। अब ये नंबर्स देखिए नियरली इक्वल्स इस वजह से हैं कि इनका ये जो स्टार्ट वाला पार्ट है अप टू dp दे आर इक्वल, और चेंज कहाँ पे हो रहा है, इससे आगे चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा था इन्होंने इसको डिफरेंट में लिख दिया, अल्फा p+1 p+ एंड बीटा p+1 p+2, और ये अल्फा किए तक जा रहा है, ये बीटा किए तक जा रहा है। तो ये डिजिट्स जो है ना हमारे पास ये वेरी करेंगे, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये अप टू dp के बाद ये सारे के सारे डिजिट्स डिफरेंट भी है और नंबर ऑफ डिजिट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। पावर्स देखिए यहाँ पे इक्वल है, नियरली इक्वल नंबर्स हैं, हमारे पास पावर सेम आ रही हैं और ये डिजिट्स dp तक बराबर भी हैं। जब हम माइनस करेंगे तो डेफिनेटली ये शुरू वाले डिजिट्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास डिजिट्स आएंगे वो p+1 से लेकर अप टू k तक ये डिजिट्स हमारे पास बाकी बच जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो p डिजिट्स हैं ये हमारा नुकसान हो गया। टोटल डिजिट्स k थे हमारे पास, k में से हमने p डिजिट्स हमारा सब्ट्रैक्शन में ये ख़त्म हो गए, तो बाकी डिजिट्स जो रह गए वो k माइनस p डिजिट्स हमारे पास रह गए हैं। तो बता रहे हैं द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज टू रिप्रेजेंट x माइनस वाई हैज़ एट मोस्ट k माइनस p डिजिट्स, यानी जो माइनस हमने किया है उसके बाद जो डिजिट्स रह गए हैं वो k माइनस p हैं, डिजिट्स ऑफ सिग्निफिकेंस, या इसको सिग्निफिकेंट डिजिट भी आप बोल सकते हैं। हाउएवर इन मोस्ट कैलकुलेशंस डिवाइसेस x minus y will be assigned k digits with the last p being either 0 or randomly assigned। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेशंस में आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने 10 डिजिट लेने हैं या 5 डिजिट लेने हैं, तो उसके बाद जो बाकी डिजिट्स होते हैं वो या तो जीरोस कर दिए जाते हैं या उनकी वैल्यूज रैंडम कर दी जाती है। सो एनी फर्दर कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग x माइनस वाई, यानी अब x माइनस वाई जो हमारे पास आंसर आया होगा जिसमें डिजिट्स जो है नंबर ऑफ डिजिट्स वो k माइनस पी डिजिट्स हैं, क्योंकि p डिजिट्स कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब जहाँ जहाँ पे ये कैलकुलेशंस x माइनस वाई वाली दोबारा इन्वॉल्व होंगी तो इस कैलकुलेशन की वजह से बाकियों के डिजिट्स भी कम होते चले जाएंगे। सो एनी फर्दर कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग x माइनस वाई रिटेन द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग k माइनस p डिजिट्स, की जो प्रॉब्लम है वो रिटेन रहेगी, सस्टेन रहेगी। सिंस अ चेन ऑफ कैलकुलेशन इज नो मोर एक्यूरेट देन इट्स वीकेस्ट पोर्शन, कि जो हमारी आगे जितनी भी कैलकुलेशन की चेन चलेगी
वो इसकी वजह से वीक हो जाएगी। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट यहाँ पे नहीं करेंगे तो हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो वीक हो जाएगी, हमारी एरर जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। नाउ इफ अ फाइनाइट डिजिट रिप्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन इंट्रोड्यूसेस एन एरर, यानी जिस तरह यहाँ पे एरर हमारे पास अब पैदा हो गई है x माइनस वाई की वजह से, further enlargement of the error occurs when dividing by a number with small magnitude। यानी एक तो हमारे पास नुकसान ये हुआ कि x माइनस वाई लेट से ये बहुत स्मॉलर नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है, माइनस करने के बाद जैसे ये नंबर आ गया था। अब इसको अगर हम और स्मॉलर नंबर से 10 टू पावर -7 से लेट से इसको डिवाइड करते हैं तो अब आंसर क्या होगा देखें। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 10 टू पावर 1 2 3 4 एंड 5 10 टू पावर -5, ये हो गया हमारे पास। तो ये 10 टू -7 ऊपर जाके अब चूंकि माइनस से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये देखिए 10 टू पावर हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड विच इज इक्वल टू अराउंड 300, ठीक है। तो पहले जो एरर थी उस एरर की वजह से अब हमारी कैलकुलेशन जो है ना ये और ज़्यादा एरर उसमें इंक्रीज कर जाएगी। पहले एरर आनी थी पॉइंट्स में, जीरोस के बाद कहाँ जाके एरर आ रही थी, और वो एरर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हमारे पास कर जाएगी। यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। और इक्विवेलेंटली व्हेन मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद अ लार्ज मैग्नीट्यूड, कि अगर इसको लार्ज मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 10 टू -7 एक छोटा नंबर है, इसको यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 टू पावर 7 बन जाएगा। तो लार्ज मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही इफेक्ट होगा कि हमारे पास जो एरर है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब ये एक एग्जांपल से आगे बताते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल दैट द नंबर z, ठीक है, ये एक नंबर z इन्होंने सपोज किया है, हैज़ अ फाइनाइट डिजिट अप्रोक्सीमेशन z प्लस डेल्टा वेयर द एरर डेल्टा इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिप्रेजेंटिंग और बाय द प्रीवियस कैलकुलेशन। यानी ये डेल्टा एरर हमारे पास आई है, ये इंट्रोड्यूस हुई है हमारे पास सेम डिजिट नंबर में, हमने कहीं सब्ट्रैक्शन की थी, या मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे x माइनस वाई हमने परफॉर्म किया था ना ऑपरेशन, उसकी वजह से हमारे पास लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ और यहाँ पे नंबर बहुत छोटा हो गया हमारे पास, इसी को कह रहे हैं z। अब z में जो लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट की वजह से जो हमारे पास एरर आ रही है वो डेल्टा है। तो बता रहे हैं कि z प्लस डेल्टा अगर हमारे पास टोटल नंबर होता, लेट से नाउ इफ वी डिवाइड दिस z प्लस डेल्टा और z बाई एन एप्सिलॉन 10 टू पावर -m, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो z प्लस डेल्टा बेसिकली क्रॉस हो जाएगा, ये 10 टू -n है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू पावर n, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो 10 टू पावर n हो जाएगा। पहले हमारे पास वैल्यूज जो थी वो स्मॉलर आ रही थी, लेकिन अब वैल्यू बड़ी हो गई है। इस वैल्यू को बड़ी होने की वजह से हमारे पास एरर भी बड़ी हो जाएगी। द एब्सोल्यूट एरर इन दिस अप्रोक्सीमेशन इज डेल्टा क्रॉस 10 टू पावर n is the original absolute error and mod of delta multiplied by the factor 10 to power n। पहले थी डेल्टा एरर थी हमारे पास सिर्फ, और अब एरर जो इंक्रीज होके क्या हो गया 10 टू पावर n होगी हमारे पास एरर। अच्छा, यहाँ तक जो अभी हमने डिस्कशन की है ये कुछ थियोरेटिकल हमारे पास इसका पार्ट था, और इस थियोरेटिकल पार्ट में हमने सिर्फ ये बात बताने की कोशिश की है। मैं आपको सादे लफ्ज़ों में इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे पास नंबर्स जो हैं वो नियरली इक्वल हैं का मतलब ये होता है कि एक नंबर 325 है और दूसरा नंबर 321 है, तो ये नंबर नियरली इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे जो इक्वल नंबर्स होते हैं उनमें जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 325 में 3 डिजिट है सिग्निफिकेंट और 321 में 3 डिजिट है सिग्निफिकेंट, लेकिन जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4। तो 4 में तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब इस तरह की कैलकुलेशन में हमारे पास एरर पैदा होती है, क्योंकि अब हमने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कम होंगे तो एरर हमारे पास इसमें इंट्रोड्यूस होगी। यही बात हम इस अगली एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। For example, we have a number p which is equal to 0.54617 and q is equal to 0.54601। अब ये डिजिट्स दोनों देखें
कि यहाँ पे 17 एंड पे आ रहा है और यहाँ पे 01 आ रहा है, तो 16 डिजिट्स का डिफरेंस है, और वो भी काफ़ी आगे चल के। तो अब वो कह रहे हैं कि यूज़ 4 डिजिट अरिथमेटिक, 4 डिजिट राउंडिंग भी करेंगे और 4 डिजिट चॉपिंग भी करेंगे। तो यूज़ 4 डिजिट अरिथमेटिक टू अप्रॉक्सीमेट p माइनस क्यू एंड डिटरमिन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर यूजिंग राउंडिंग एंड चॉपिंग। अब अगर हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व करें, यानी p माइनस क्यू, इसको सिंपल इसको माइनस करें और इसका आंसर r में स्टोर करें जैसे हम p में करते थे, तो ये इन्होंने बता दिया जी, ये आपके पास आंसर आ गया 0.3016। यहाँ पे देखें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे दोनों नंबर्स में, लेकिन आंसर में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट रह गए। इसकी वजह यह है कि हमारे पास नंबर्स जो थे वो नियरली इक्वल थे। अब फर्स्ट हम करेंगे राउंडिंग के साथ। सपोज द subtraction is performed using 4 digit rounding arithmetic, rounding p and q to 4 significant digits। अब जब हमने p को 4 significant digit में लिखा तो ये हमारे पास ये लिखा हुआ है p स्टेरिक, किसको बोला हुआ इन्होंने, और 0.5462। इसी तरह q को जो हमने 2 हमने क्यों कर दिया, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 1 ऐड हो जाएगा 2 में, और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा, 0.5460। अब इन दोनों 4 डिजिट नंबर्स जो हैं इनको हमने राउंडिंग के थ्रू इसका फिक्स पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं, ठीक है। जब हमने माइनस किया 0.5462 को 0.5460 से, तो आंसर आ गया 0.0002। अब यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट से दोनों में, लेकिन आंसर में हमारे पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट डिजिट रह गया। तो अगर हम यहाँ पे अब r हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, r स्टेरिक हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यहाँ पे जब हमने रिलेटिव एरर फाइंड की तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.25 आ रहा है, विच शोज द एरर इज क्वाइट ग्रेटर। हाउएवर अगर हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते तो हमारे पास आंसर जो है वो स्मॉल आ जाता। अगर एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड करते तो ये आता आंसर 0.00016 माइनस 0.0002। तो ये मेरे पास आंसर जो यहाँ पे आ रहा है वो आता -4 क्रॉस 10⁻⁵। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि एब्सोल्यूट एरर बाज़ हमें मिसगाइड करता है। ये शो कर रहा है कि एरर बहुत अच्छी है, लेकिन एरर अच्छी नहीं है क्योंकि नंबर्स नेग्लिजिबली स्मॉल थे। ये भी स्मॉल नंबर है, ये भी स्मॉल नंबर है। जब नंबर नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाए या बहुत बड़े हो जाएं तो हम रिलेटिव एरर यूज़ किया करेंगे। तो 0.25 हमारे पास आंसर आया है और ये एरर काफ़ी ग्रो कर गई है। इस यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एरर क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि सेम नियरली इक्वल नंबर्स को माइनस करने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। So the result has only one significant digit, whereas P steric and Q steric were accurate to 4 and 5 significant digits respectively. ठीक है। Now if chopping is used to obtain the 4 digits, the 4-digit approximation to P and Q will be equal to this. जब हमने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास चॉपिंग में 3 significant digits आए हैं, which also result in only 1 significant digit of accuracy। अब यहाँ पे आंसर तो 0.375 आया है, लेकिन एक्यूरेसी हमारे पास 1 डिजिट की है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये देखें P माइनस क्यू में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया। तो कैलकुलेशन के अंदर अगर कहीं भी जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन्वॉल्व होंगे तो हमारी एक्यूरेसी वहीं तक रह जाएगी। असल चीज़ है एक्यूरेसी, कि हम एंड पे कह सकें कि हमारा आंसर कितना एक्यूरेट है। अगर हमारे पास थ्रू आउट कैलकुलेशन में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं और कहीं भी 4 से कम नहीं हुए कैलकुलेशन में, तो हम कहेंगे और आंसर इज एक्यूरेट अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम कह सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं है। यही वजह है कि आपको बताया जाता है कि जब न्यूटन मेथड आप अप्लाई कर रहे होते हो या बाइसेक्शन कर रहे होते हो, बाइसेक्शन में ए बी आप लिख रहे होते हो, फिर पी उसको हाफ कर रहे होते हो, तो ये सारी कैलकुलेशन जो है ये
कम से कम अगर 5 डिजिट आपके पास टॉलरेंस है 10⁻⁵ का, तो आप एटलीस्ट 7 to 8 डिजिट्स मेंटेन रखो हर कैलकुलेशन में। किसी भी जगह अगर आपने एक भी जगह आंसर आपने 3 डिजिट में लिख दिया और बाकी सारे के सारे आंसर आपने वही 7 to 8 डिजिट में आप लिखते आ रहे हो, तो आपकी उस 3 डिजिट लिखने की वजह से सब में आंसर आपके पास आगे इनएक्यूरेट हो जाएंगे। यानी जिस जगह पे आपने वो 3 डिजिट लिखा, उसके बाद उस 3 डिजिट नंबर को आगे यूज़ किया, तो सारी की सारी कैलकुलेशन जो हैं हमारी वो इनएक्यूरेट हो जाएंगी। अब इसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। द quadratic formula states that the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 when a is not equal to 0. यहाँ पे a is not equal to 0 is because if a is 0 then this equation will not remain quadratic as more. So we solve this quadratic equation using quadratic formula. यहाँ पे इन्होंने दोनों लिख दिया है। रूट्स के लिए हम वैसे प्लस माइनस कर देते हैं, यानी एक ही में लिखकर यहाँ पे अगर माइनस लगा दे तो हम कहते हैं ये दोनों क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी को कह रहे होते हैं। हाउएवर वी कैन राइट देम सेपरेटली आल्सो। सो कंसीडर द फार्मूला अप्लाइड टू द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दे दी गई है हुज रूट्स आर अप्रॉक्सीमेटली, ये रूट्स भी इन्होंने फाइंड करके दिए हैं। आप लोग इन रूट्स को वेरीफाई करोगे इन इक्वेशंस में, जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हो कैलकुलेटर में, वैसे ही सॉल्व करके देखोगे आपके पास रूट्स ये आ रहे होंगे। अब वो कह रहा है कि हम ये कैलकुलेशन जितनी भी इन्वॉल्व हैं, ये कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे थ्रू 4 डिजिट राउंडिंग। ठीक है, इस कैलकुलेशन को हम करेंगे 4 डिजिट राउंडिंग में। अच्छा, in this equation b square is much larger than 4ac, so the numerator in the calculation for x1 involves the subtraction of nearly equal numbers. Why? अब अच्छा, ये कैलकुलेशन में भी आप लोग देख लें, आपके पास ये 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में से किसी दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई किया, अब ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है तो खाली 4 को हमने 4.000 लिखा है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो आएगा क्रॉस 1.000, ये 4 आ गया। यहाँ पे अब इतना फर्क नहीं पड़ रहा, तो दोबारा हम एफ अप्लाई करेंगे अदरवाइज में। अब जो रिजल्ट आया इसको दोबारा हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तीसरा 1 जो पड़ा हुआ है, इनका जो रिजल्ट आया इसको आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपके पास आंसर अगेन 4 ही आ रहा होगा। और इस 4 को जब हम माइनस करेंगे 3856 से, अच्छा 3856 कैसे आया, ये आया होगा 62.10, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 62.10 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो ये आता है 3856.41। अब यहाँ पे हमने फ्लोट अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये मशीन मल्टीप्लिकेशन हमने की है, मशीन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें फ्लोट अप्लाई करना होगा। फ्लोट अप्लाई करेंगे, 4 डिजिट विद राउंडिंग करना है। अब 4 डिजिट तो ये हो गए, 5th डिजिट 4 था तो राउंड अप नहीं होगा, 3856 ही हमारे पास आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसमें से 4 माइनस किया तो ये आंसर आ गया 3852। 3852 का अंडर रूट लिया हमने, तो अंडर रूट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 62 पॉइंट, यानी अगर मैं इसको एग्जैक्टली लिखूँ तो ये आ रहा है 62.135 13553। ठीक है, लेट्स से अब मुझे चाहिए इसके फर्स्ट 4 डिजिट्स 1 2 3 4। अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट 4 का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा, दोबारा से इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा 0.6213। अब अगर आप राउंडिंग करें तो नेक्स्ट डिजिट 5 है तो ये हो जाएगा 4, अगर आप 4 डिजिट मेंटेन लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसमें ये होना चाहिए था, मैंने ना दोबारा इसको माइनस कर दी, कैलकुलेटर पे गलती कर दी थी। ये बेसिकली जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो वैल्यूज़ आ रही हैं
62.06 आगे आ रहा है 448। तो यहाँ पे अब चूंकि 4 डिजिट के बाद जो फिफ्थ है वो 4 है, तो यहाँ भी राउंड अप नहीं होगा, और हम बाकी निगलेक्ट कर देंगे, तो आंसर 62.06 आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर फाइनाइट डिजिट अरिथमेटिक में आपने को प्रॉब्लम आ रही है सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो आप इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लाजमी लिख लिया करना। फिर तो 62.06.448 ये लिखोगे, और क्रॉस 10 टू पावर नंबर को आपने छोटा किया है, तो ये आपके पास स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसमें से 4 डिजिट लोगे और बाकी डिजिट कट कर दोगे। राउंडिंग करोगे तो 5 से बड़ा होगा, तो राउंडिंग यहाँ पे आप परफॉर्म करोगे। अच्छा जी, ये आंसर आ गया 62.06। अब यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन हो रही है, दिस सब्ट्रैक्शन इज ऑफ नियरली इक्वल नंबर, ये भी 62 है, ये भी 62 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 06 है, तो 4 का डिफरेंस है। देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। इस 4 के डिफरेंस की वजह से हमारे पास पहले 4 सिग्निफिकेंट डिजिट थे, और अब सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट रह गया। अगेन अब इस एक सिग्निफिकेंट डिजिट को हमने 2 से डिवाइड किया, तो नंबर फर्दर स्मॉल हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आया है। आखिर में 3 जीरोस क्यों लगाए हैं? क्योंकि हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट मेंटेन करने हैं। हमें पता है 2 के बाद 0 है, 2 के बाद कुछ और नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी हमें पता है 4 के बाद 0 ही है, कुछ और नहीं है, तो ये जीरोस सिग्निफिकेंट है, शुरू वाले जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये हमारे पास एरर आई है एफ ऑफ x1 की। अगर एफ ऑफ x1 यहाँ से आप देखें, तो ये आपके पास आंसर जो है ये डिफरेंट है, 0.016 है, और यहाँ पे आंसर है 0.02। तो एरर इज क्वाइट लार्ज। ये रिलेटिव एरर देखें यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। नाउ हाउ टू रिमूव दिस फेलियर, हम यहाँ पे एक पुरानी टेक्निक यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। अच्छा, अब इसको हम रैशनलाइजेशन से तो हम करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देख लें कि x2 जब फाइंड किया हमने, और यही कैलकुलेशन वहाँ पे इन्वॉल्व हुई, तो चूंकि साइन नेगेटिव का आ रहा था, पहले पॉजिटिव साइन था, x2 में साइन नेगेटिव का आएगा, तो ये नेगेटिव साइन में दोनों सिमिलर नंबर ये आपस में ऐड हो रहे हैं। ऐड होने की वजह से अब ये आंसर जो है ये -124.2 हो गया। तो आप देखें हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 ही रहे हैं। जब 4 रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो हमारे पास आंसर जो है ये भी, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट करेंगे, ये 0 जो है ये सिग्निफिकेंट होगा, एक्यूरेट होगा। अब इसको जब हमने रिलेटिव एरर फाइंड की, तो देखिए आंसर हमारे पास 10⁻⁴ का आया। 10⁻⁴ का ही आना चाहिए था मैक्सिमम, क्योंकि हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लेकर चले थे, तो एरर भी एटलीस्ट 10⁻⁴ की आनी चाहिए थी हमारे पास। अब क्या किया हमने, जो x1 की कैलकुलेशन है इसको हम अब इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। हमारे पास नियरली इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो नंबर सब्ट्रैक्ट ना हो, नियरली इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट ना हो। तो हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया, -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई हुआ, -b होल स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, और ये स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो गया स्क्वायर की वजह से। और फर्दर जब हमने इसको सिंप्लीफाई मजीद किया, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास आ गया जी 4ac डिवाइड बाई 2a इंटू -b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए 2a से ये a कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, तो आंसर में आ गया -2c। माइनस यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, चल ऐसे रहा है कि ये नीचे वाला जो माइनस था, माइनस ये कॉमन होके ऊपर चला गया, तो इन्होंने माइनस ये ऊपर लगा दिए, तो ये x1 हमारे पास न्यू फार्मूला मिल गया। अब यहाँ पे जो हमने रखा, तो अब देखें वो जो चीज़ें नोमिनेटर में ऊपर जो सब्ट्रैक्ट हो रही थी और नियरली इक्वल नंबर थे, वही बॉटम में जाके अब ऐड हो रहे हैं। अब जब ये बॉटम में जाके ऐड हुए, तो अब हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास 4 डिजिट वापस आ गए, और इस 4 डिजिट वापस आने की वजह से एरर जो है 10⁻⁴ की हो गई। तो आप लोगों ने ये देखा कि इस कैलकुलेशन में हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया और नियरली इक्वल नंबर को माइनस होने से बचाया, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर दोबारा से करेक्ट हो गया एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ये इस तरह की टेक्निक्स जो है हम यूज़ करते रहेंगे। बुक में भी अगर आप लोग इसको लेके चलो, तो आपके पास
यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं अब आपके बुक में अवेलेबल हैं। हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आप लोगों को ऑलरेडी दिए थे। अब 4 में ये कैलकुलेशन इन्वॉल्व हैं। आपने 4 और 5 को डिवाइड, मशीन जब एडिशन करेंगे इस पे, तो 4 और 5 को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डिजिट चॉपिंग से भी करना है, फिर 3 डिजिट राउंडिंग से भी करना है, और रिलेटिव एरर्स भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये चीज़ अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना होगा कि इसको कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो। तो पहले आप पी कह दो उसको कि यानी जो 4 और 5 प्लस 1 ओवर 3 है, इसको हमने पी कह दिया। और पी स्टेरिक क्या होगा कि 4 और 5 को डिवाइड करेंगे, इसका फ्लोट लेंगे 3 डिजिट राउंडिंग तक या चॉपिंग तक, और फिर 1 ओवर 3 करेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 डिजिट चॉपिंग या राउंडिंग तक, फिर इनको ऐड करेंगे, उस पर फिर फ्लोट अप्लाई कर देंगे। अब ये जो आंसर आएगा इसको हम पी स्टेरिक में स्टोर कर देंगे। पी माइनस पी स्टेरिंग करेंगे तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। जब दोबारा पी से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर आ जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन आपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इसमें यही कैलकुलेशन आपने करनी है। 6, 7 और 8 ये इसी में वेरिएशंस कुछ आई हुई हैं।